Welcome back for the series of lectures, Hydraulic Engineering. Yesterday was started for the syllabus of the unit number 1, that is Introduction to Open Channel Flows. And we have discussed some of the part from the open channel flows. That is, I discussed about the classification of the channels based on the various aspects. Okay, and we have started for the geometrical properties. We'll go for the quick review of the part which we have discussed last time, and then we'll proceed for the next part. Okay, so in the classification we had seen the classification of the channels, that is how they are classified based on the various parameters, that is based on the shape. The canals are triangular, rectangular, trapezoidal, parabolic, circular, compounded. Then as per the conditions of the formations, the canals are natural, artificial, that is the rivers and streams are the natural channels, whereas the artificial channels are the man-made channels. Then according to the cross-section conditions, we have seen the type of the canals as a prismatic channel and the non-prismatic channel, or the prismatic channel and a non-prismatic canal. As per the cross-sectional conditions, the canals are classified as a prismatic canal and a non-prismatic canal. So who will go for the meaning of the prismatic canal and non-prismatic canal? When to say the canal or the channel is a prismatic, and when to say the canal or the channel is a non-prismatic? Anyone? Anyone? Prismatic channel, non-prismatic channel? The channels in which the cross-sectional conditions like a bed slope, side slope, they remains same throughout the length, then they are called as a prismatic channel, and we used to define them, or we used to write them as a dl by dx or da by dx as a constant, that is the area, and so various parameters, that is the width, the height, etc., they remains constant throughout the line. It is a, its example is a man-made channels. There has to be lined canals, we can say. Those are nothing but the prismatic channels under ideal conditions. Whereas on the other hand, the non-prismatic channels are those channels in which the cross section is a bed slope and side slope that undergoes a deformation or they changes along the length of the canal, then that is called as a non-prismatic. So example of non-prismatic, all the natural rivers or rivers and the streams, those are nothing but the non-prismatic channels. And after that we had seen as per the boundary conditions, rigid boundary and mobile boundary. In that we have seen one of the concept, that is a rigid boundary channels used to have only 1 degree of freedom, that is a flow depth. So for rigid boundary channels, only the depth of the flow changes and other parameters used to remain same throughout the channel. That is nothing but the lined canals. That example we had seen, that is a lined canals. And यानी कि जब भी rigid boundary रहता है तब उसका जो boundary conditions रहते हैं, that may be a side slope or that may be the bed slope, that may be the side conditions or that may be the bed conditions. They doesn't deform, they doesn't undergo the erosion and the deposition. As there is no erosion, so there will not be any deposition. So such type of the canals are called as an rigid boundary channels or rigid boundary canals. Okay, और दूसरा था मोबाइल बाउंड्री चैनल्स, यानी कि वहां पे बेड स्लोप चेंज होता है, साइड स्लोप चेंज होता है, देन जो डेप्थ है वो चेंज होता जाता है, यानी कि उसका प्लेनिफॉर्म चेंज होता जाता है along the length, then that channel or the canal is called as a mobile boundary canal. Okay, यानी कि उसके लिए 4 degrees of freedom रहते हैं, that is depth of flow, bed width, longitudinal slope and the planiform. They used to change along the length of the channel. Then as per the surface conditions, exposure to the surface, we can say that is a open and closed channels. That part also we have seen, यानी कि जब भी टॉप सरफेस जो कैनल का रहता है वो एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर रहता है, तब उसको हम तब उसी कैनल को हम ओपन कैनल बोलते हैं. एग्जांपल हमने देखा था रिवर और स्ट्रीम. और दूसरा जो है क्लोज्ड चैनल, that is nothing but the top surface is closed, but there used to have a gap between the top surface and the water level. So that canal example we had seen, that is a drainage lines, underlying drainage lines, that was the example.
Then after that we have discussed the started for the discussion of the geometrical properties. In that first one we had seen that is a flow depth. So flow depth y is a exactly whatever the measurement we used to carry out, that doesn't gives an idea about the flow depth y. Okay, so generally what we used to measure a vertical distance, but that vertical distance is not always a flow depth, because the flow depth is nothing but the perpendicular distance between top surface of the water and the bottom surface of the channel. उसके बीच में जो perpendicular distance रहेगा, that is indicates the flow depth. So उसको निकालने के लिए हमने क्या देखा था, वो बेड स्लोप यदि थीटा होगा तो in terms of the cos theta we used to get relation between the flow depth y and the d. And as the theta or the bed slope is so small, so we consider or we used to treat that cos theta nearly equals to 1, and it becomes a theta, sorry, y is equals to d. So that's why arbitrarily we used to consider that the theta and the y, sorry, d and y are the same one. After that we have discussed a weighted perimeter, then weighted area, that is a उसी को हमने वाटर सरफेस एरिया भी बोला था, यानी कि जब पानी पास होता है, वाटर पास होता है कैनाल में से, तो कितना एरिया भिगोता है, दैट एरिया इज नथिंग बट द वाटर एरिया, और जितना पेरीमीटर वो कैनाल का भिगोता है, दैट पेरीमीटर इज नथिंग बट द वेटेड पेरीमीटर. दैट थिंग्स basic things we have discussed last time. Now the next geometrical property which we are going to discuss, that is about the hydraulic radius. So hydraulic radius किसको बोलने का, हाइड्रोलिक रेडियस, और उसी को दूसरा एक नाम है दैट इज मीन डेप्थ. मीन डेप्थ. So to which radius or which depth we can say, can we say the hydraulic radius or a mean depth? So hydraulic radius or a mean depth हम जब बोलते हैं, that is nothing but the ratio. अभी mean है तो एवरेज आ जाएगा, नो डाउट. इन जनरल वी कैन से, सो हाइड्रोलिक रेडियस उसी को हम कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं. सो दिस इज अ रेशो. किसका रेशो रहता है, वेटेड एरिया. सो दिस इज अ रेशो ऑफ वेटेड एरिया टू द वेटेड पेरीमीटर. दैट रेशो इज नथिंग बट अ hydraulic radius, weighted area upon the weighted perimeter, that is A upon P we can say. So hydraulic radius R is nothing but the A by P. Now consider as an example we will have for both the cases rather. So firstly we'll consider a rectangular channel section. Suppose that this is our rectangular channel section. This is a ground level, we'll consider that. Okay, then it's a excavated depth we can say from the ground surface to its channel bed as a D, and we'll consider that somewhere else here this is the water surface. So water surface is nothing but the flow depth, that is a y, and its a base width as a b. I would like to consider for this particular case. So यहाँ पे जो base width रहेगा वही top width t रहेगा. This will be top width t, which will be equals to a b we can write over here. Okay, यानी कि यहाँ पे जो weighted area जो रहेगा, that weighted area A will be equals to B into Y, which we had seen last time. I would like to write as equation 1, and weighted perimeter P will be equals to the summation of this Y, this B, and here also the depth will be the Y. It means this will be the 2Y plus B. यानी कि hydraulic radius or the mean depth for this rectangular channel section we can say that will be a capital R is equals to area as a B into Y divided by weighted perimeter as a 2Y plus B. So this will be the hydraulic radius for this particular channel section we can write over here. Suppose that time being as an example, the width of the channel as a 1 meter. Flow depth also will consider as an 1 meter. रेक्टेंगुलर है तो मैं उसी के हिसाब से ही मान लूंगा. ओके, तब जो हाइड्रोलिक रेडियस जो हमें मिलेगा यहाँ पे, दैट विल बी R इज इक्वल्स टू B इंटू वाई. अभी B 1 है, Y 1 है, यानी कि रेशियो कितना आएगा रे, प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 into 1 वाला, 1 into 1, हाउ मच, 1 एग्जैक्टली, डिवाइडेड बाय 2 into, अभी Y कितना है, 1 है, 1.
प्लस b कितना है 1 1, so that is equals to 1 upon 1/3 1 by 3 1 by 3 will be there. So this 1 by 3 is nothing but the hydraulic radius or a mean depth of this channel we can say. कब आएगा वो, जब हमारा डेप्थ फ्लो का y1 रहेगा, बेस विड्थ उसका 1 रहेगा, तब रेक्टेंगुलर चैनल का सेक्शन का जो हाइड्रोलिक रेडियस आएगा, मीन डेप्थ आएगा, दैट विल बी अ 1/3 वी कैन से. अभी सिमिलरली ट्रेपेजोइडल के ले लो, ट्रेपेजोइडल के लिए कंसीडर कर दो. अब ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन में क्या रहता था, उसमें दो ट्राइंगल्स आते हैं और एक रेक्टेंगल आता है. ओके okay? मान लो कि दिस इज एन योर trapezoidal channel section. Okay, as usual, as like an yesterday's example I'm considering over here. So उसके लिए भी हमने क्या किया था, फ्लो का टॉप विड्थ यहाँ पे लिया था. दिस इज अ d, we can say total depth of the canal from the top surface of the water to the channel bottom we can say. यहाँ पे यदि आप साइड में यहाँ पे भी ऐसा सॉइल सरफेस दिखाते हैं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, देन फ्लो डेप्थ is y. Okay, then side slope is 1 as to z, 1 vertical as to z horizontal. Okay, base width as b. Then yesterday we have divided this section into the three parts. There is a rectangular and a triangular parts. So two triangles will be get formed over here. Those will have the same top width as a small t. I would like to consider this will be a small t as a top width for this triangular portion, and top width for this rectangular portion it will be as like an base width b. यानी कि जितना base width b रहेगा उतना ही उसका top width रहेगा. Okay, so last time we have calculated the value of t also from the given slope. यानी कि यहाँ पे वन वर्टिकल के लिए फ्लो का डेप्थ कितना है, y है, ऐसा हमने लिया था. और जेड हॉरिजॉन्टल के लिए हमें निकालना है, जेड हॉरिजॉन्टल के लिए हम सॉरी जेड वन वर्टिकल के लिए जेड हॉरिजॉन्टल ऐसा हमने लिया था. तो जो हमें हॉरिजॉन्टल टी जो आएगा, जो यहाँ पे जो बेस विड्थ आएगा, जो टॉप विड्थ दिया है हमने, दैट टॉप विड्थ कितना आएगा वो हमने कल निकाला था. दैट वाज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन t इज इक्वल्स टू z इनटू y, उतना आया था हमारा. इज इट करेक्ट एज पर द yes यस्टरडे? sir ओके, अभी वो हमारा z into y आ गया. अभी this t is a z into y, so what will be this dimension? If we'll go for, suppose that this is a, this is the b, this is the c. okay, a b c ऐसा है हमारा. अभी हम एनालिसिस में क्या करते हैं, जब मैक्रो एनालिसिस रहता है, सॉरी मैक्रो एनालिसिस कि बड़ा वाला, उसमें हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो भी टॉप विड्थ यहाँ पे आया है, अंडुलेशन सरफेस जो दिखता है हमें, वो इज टू कंसिडर इट एज एन हॉरिजॉन्टल वन. यानी कि यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल आएगा, दिस विल बी लाइक दिस, दिस विल बी टॉप विड्थ वी कैन से. ये हमारा स्लांटिंग एज है और ये हमारा वर्टिकल वाला जो है दैट इज अ फ्लो डेप्थ वी कैन से. ओके, सो यहाँ पे हमने क्या नाम दिया था, दिस इज अ कैपिटल ए, दिस इज अ कैपिटल सी, दिस इज अ बी. अभी जो हमने निकाला है ए सी, दैट इज अ टॉप विड्थ, ए सी इज इक्वल्स टू जेड इनटू वाई, उतना आया है. So this angle will be 90 degree as usual because ये horizontal है और ये vertical है. अभी हमें निकालना क्या है, ये slanting edge जो है AB वाला, that slanting edge we want to go for, isn't it? ये जो slanting edge है वो slanting edge हमें निकालना है. तो उसके लिए हमें मालूम क्या है, हमें ये y मालूम है, isn't it? vertical क्या है, y है, flow depth है, और horizontal जो है वो हमारा ZY है. तो ये भी कैसे निकालोगे रे, A to B, how to get the A B here? by Pythagoras. Right, go for, कितना आएगा वो, AB square is equals to AC square plus BC square आएगा, that is equals to A to C is a Z into Y है,
उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC कितना है, y है, उसका स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, यानी कि क्या आएगा ये z स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया, ये AB का स्क्वायर है। ठीक है, मान लो थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे, y स्क्वायर कॉमन निकलेगा यहां से, सही ना, y Yes, स्क्वायर, sir. तो टेक आउट दैट कॉमन, so y square into bracket z plus 1 we can write here, or 1 plus z, whatever it may be. This is Sir, nothing. Z square normal. हाँ sorry z square, हाँ z square, y square into under root z square plus 1. This is the AB square. Now take out the root, just take out the root of the same. So what you will get, if you take the square root of the same, then we will have the length AB, that is a slanting edge, we can say it will be equals to y into root of 1 plus z square or z square plus 1, whatever it may be, कैसे भी लिखो कोई बात नहीं. This is the dimension AB, we can say slanting edge. Understood how I have calculated AB? यानी कि जितना A to B रहेगा, मान लो कि यहाँ पे C है, यहाँ पे D नाम है, यहाँ पे E है और यहाँ पे F है, तो जितना AC है, सॉरी जितना AC है उतना EF है, और जितना AB रहेगा उतना ही DE रहेगा. So that will be equals to the dimension D to the E, we can say. Is it correct whatever I have written over here? AB लेफ्ट हैंड साइड का स्लैंटिंग एज है और DE राइट हैंड साइड का साइड है, स्लैंटिंग एज है. दोनों सेम क्यों है? क्योंकि डेप्थ जो है उसका, हाइट जो है ट्रायंगल का वो सेम है, उसका बेस जो है वो बेस सेम है. ओके, स्लोप जो है वो दोनों तरफ से सेम है, यहाँ पे 1:z है, यहाँ पे भी 1:z ही रहेगा. तो उसके हिसाब से जो भी डायमेंशन DE और BA रहेगा वो दोनों सेम रहेंगे. वो हमें AB निकल गया. अभी हमें करना क्या है कि यहाँ पे मीन हाइड्रोलिक रेडियस R निकालने का है. So for what purpose we calculated this? For getting the hydraulic radius R. So R क्या रहता है? Weighted area upon weighted perimeter. अभी इसके लिए weighted area जो रहता है वो weighted area हमने कल निकाला था, कितना आया था रे हमारा? It is summation of this rectangular area plus two triangles area. I would like to once again. So area will be equals to 2 times, हाँ 2 times मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, 1/2 base into height, 1/2 बेस इंटू हाइट. दो ट्रायंगल्स हैं, कौन से ABC और DEF वाले हैं, तो मैंने दो ट्रायंगल का एक ही बार ले लिया, 2 into 1/2 बेस इंटू हाइट, प्लस ये जो रेक्टेंगल है बीच वाला, कौन सा BCFD वाला, उसका क्या रहेगा? बेस इंटू हाइट रहेगा. Isn't it? That will be our weighted area. और weighted perimeter कितना रहेगा? AB plus BD plus DE उतना रहेगा. So just write down that is AB plus BD plus DE. That is equals to now 2 into 2. Sorry, that 2 will get cancels here in. So what else remains? Base into height plus base into height. अभी इसका बेस जो है वो AC नहीं तो EF उतना है. ये AC हमें मालूम है वो कितना है? Z into Y है. So that is will be equals to base as a Z into Y into height कितना उसका? Y है. ओके, प्लस बेस किसका है अभी? ये है रेक्टेंगल का. रेक्टेंगल का बेस कितना है? दैट इज अ B. जितना यहाँ पे है टॉप विड्थ है उतना उसका बेस विड्थ है, इनटू उसका हाइट जो है वो है Y, डिवाइडेड बाय AB plus BD plus DE. अभी AB और DE दोनों सेम है, so I would like to write as a AB plus BD as a small b plus DE यानी कि AB दोनों सेम है इसलिए मैंने वो सेम लिख दिया वहां पे. So that is equals to, simplify it, that is a Z into Y square plus B into Y divided by AB plus AB यानी कि twice AB plus sorry small b, that is equals to small z into y square plus b into y divided by twice ab. ab कितना है? y into root of 1 plus z square. अभी 2 टाइम रहेगा, so 2
y into root of 1 plus z square plus ab यानी कि b. Okay, so this is nothing but your hydraulic radius we can say. अभी मान लो कि यहाँ पे we'll assume that z equals to, मान लो कि 4 है, मान लो 1:4 में अज्यूम कर रहा हूं. z is 4, y is 1 और b जो है वो भी आपका 1 है. b जो है आपका वो 1 है और y जो है वो भी 1 है. So put up the values so that you will get an idea, rough idea, that is what will be the hydraulic radius or the mean depth we can say. So that will be equals to now z as a 4 into square of the 1 plus b into y. b 1 है और y भी 1 है. It is 1 into 1 divided by 2 into y as 1 under root 1 plus z square. z कितना है अभी 4 है. So square of the 4 outside the square root plus b है, b that is 1, that is equals to simplify. What is the numerator? कितना है रे numerator में? 5. Right. Divided by, हाँ ये कितना आएगा 2 into 2, 2 into 1 as a 2 plus root of कितना 17. right, that is a 7. 2 root 17 plus 1, that is equals to, now simplify it, do by calculation, calci कितना आएगा रे? What is the value for hydraulic radius? 9.24. 9 5 divided by. okay, that is a 5 divided by 24. 9.24, so that is equals to 0.540. 540 मीटर में आएगा. रेडियस है. ओके, सो यूनिट विल बी अ मीटर अल्टीमेटली बिकॉज एरिया अपॉन पेरीमीटर है. एरिया का यूनिट क्या रहेगा? एरिया का यूनिट रहेगा स्क्वायर मीटर. पेरीमीटर का यूनिट रहेगा मीटर. सो मीटर स्क्वायर टू मीटर गेट्स कैंसल, सो यूनिट विल बी द मीटर. इट मींस दैट अबाउट 0.54 मीटर विल बी the hydraulic radius or mean radius if we are considering z as a 4, y as a 1 and b as a 1. Understood how to go for? Understood? Yes, sir. Okay. Next geometrical property is a hydraulic depth. Now the next one, hydraulic depth. अभी हमने hydraulic radius, that is a mean depth we had seen. Now we'll go for a hydraulic depth. अब हाइड्रोलिक डेप्थ किसको बोलने का? मीन रेडियस हमने देखा, सर मीन डेप्थ हाइड्रोलिक रेडियस हमने देखा a/p था. ओके, हाइड्रोलिक डेप्थ जो रहता है उसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं. हाइड्रोलिक डेप्थ एज अ कैपिटल डी, फ्लो डेप्थ एज अ y, and excavated depth of the canal from the bottom to the top, from the bottom to the ground surface, that is a small d. That was those are our assumptions, assuming letters we can say. So hydraulic depth d जो रहता है, that d is a ratio of weighted area a to the top width t. जो भी आपका weighted area a रहेगा divided by top width जो t रहेगी, that ratio is nothing but the hydraulic depth. यानी कि जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, कहाँ पे? यहाँ पे रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए. अभी रेक्टेंगुलर के लिए कितना था हमारा? यहाँ पे फ्लो डेप्थ क्या था हमारा? y था, बेस विड्थ तो b था और एक्सकेवेटेड डेप्थ d था. तो वेटेड एरिया जो था हमारा, यानी कि जो जितना भीग रहा है, जितना सरफेस भीग रहा है पानी की वजह से, वो कितना था हमारा? b into y था एरिया. और पेरीमीटर कितना था? 2y plus b. और यहाँ पे जो हमारा टॉप विड्थ था, वो टॉप सरफेस का जो विड्थ है ओपन टू द स्काई, दैट वाज इक्वल्स टू बेस विड्थ b. ओके, यानी कि फॉर अ रेक्टेंगुलर चैनल if we'll go for the hydraulic depth, then in that case we will have the
value as area as a b into y divided by top width कितना था रे यहाँ पे for rectangular section है d for rectangular channel section बोलो top width कितना था B. B. स्मॉल b B. ओके नहीं तो मैं एक बार यहाँ पे डायग्राम निकाल लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए ओके so this is our base width we can say it is an exact rectangular might be I'm not able to have an exact rectangular but it is rectangular we have to treat this is the flow depth y base width as b and here this is the top width t which is equals to the b okay अभी यहाँ पे जो एरिया था वेटेड एरिया द एरिया इज अ वेटेड एरिया दैट वेटेड एरिया इज अ b into y डिवाइडेड बाय जो टॉप विड्थ है हमारा वो उस केस में कितना है बेस विड्थ उतना ही है यानी कि b को b कैंसिल हो जाएगा सो व्हाट विल बी द हाइड्रोलिक डेप्थ हियर हाइड्रोलिक डेप्थ कितना रहेगा Y. Flow depth. फ्लो डेप्थ y अंडरस्टूड यानी कि जितना फ्लो का डेप्थ रहेगा उतना ही हमारा हाइड्रोलिक डेप्थ डी रहेगा किस चीज के लिए कौन से चैनल के लिए रेक्टेंगुलर चैनल के लिए रहेगा अभी मान लो कि आपके पास रेक्टेंगुलर चैनल सॉरी ट्रेपेजोइडल है आई विल गो फॉर अ ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन सिमिलरली वी हैव टू गो फॉर अ ट्रायंगुलर आल्सो ओके अभी ट्रेपेजोइडल के लिए कितना आ सकता है एनी आइडिया व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड टॉप विड्थ कितना उसका कितना रहता है रे मान लो कि ये हमारा वाटर सरफेस है वाटर सरफेस इलेवेशन है इसका बेस विड्थ था हमारा b जैसा मैंने ऊपर लिया है डायग्राम में उतना ही मैं ले रहा हूं साइड स्लोप था 1s to z फ्लो का डेप्थ है हमारा y ये साइड का एक ट्रायंगल है और ए राइट साइड का दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पे हमारा टॉप विड्थ एक रहेगा इस ट्रायंगल का t और ए रहेगा टॉप विड्थ इसका दैट विल बी b जितना बेस विड्थ है उतना ही यहाँ पे टॉप विड्थ रहेगा और इस साइड का टॉप विड्थ भी स्मॉल t उतना ही रहेगा और t का मैग्नीट्यूड हमने ऊपर निकाला था कितना था रे t का मैग्नीट्यूड Z into Y. राइट Y into Z. y into z or z into y we can say that t is equals to z into y so the hydraulic depth d for a trapezoidal channel section will be equals to weighted area divided by top width so weighted area we have calculated in a previous section only वहां पे कितना था रे I will go for that once again ट्रेपेजोइडल का वेटेड एरिया कितना है मैं डायरेक्टली यहां से ले लेता हूं जेड वाई स्क्वायर प्लस बी वाई उतना है चलेगा क्या यहां से डायरेक्टली लिया तो Yes, sir. ओके सो वी विल टेक दैट जेड इंटू वाई स्क्वायर जस्ट मिनट हाँ जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस कितना था बी इंटू वाई ना B into Y. बी इंटू वाई Yes, sir, बरोबर. डिवाइडेड बाय अभी टॉप विड्थ कितना रहेगा ये देखो इतना आएगा स्मॉल टी प्लस बी प्लस स्मॉल टी टी दो बार आएगा दोनों साइड पे है सो दैट विल बी इक्वल्स टू जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई डिवाइडेड बाय 2 times 2y plus b. मैंने और एक स्टेप बढ़ाया यहाँ पे सो आई विल सिंप्लीफाई नाउ दैट इज अ जेड वाई स्क्वायर प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय 2t t कितना है जेड वाई है सो 2 into zy प्लस b ओके यहाँ पे कॉमन कोई चीज है क्या रे जो हम काट सकते हैं ये दिखाई तो हम उसको काट देंगे कॉमन कुछ भी नहीं है ना कुछ नहीं है कॉमन यहाँ पे No, sir. ओके सो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन फॉर द hydraulic depth for a trapezoidal channel section आया समझ में
Just I have quoted here the values of the areas and their top width we can say, and as per that we have derived. The main thing is that the hydraulic depth is the ratio of weighted area to the top width, whereas hydraulic radius or the mean depth is a ratio of weighted area to the weighted perimeter. Okay, now the next heading as a next geometrical property as a section factor. So the next heading as a section factor for the channels or the canals, so we can say section factor. It is denoted by a symbol capital Z. Okay, सेक्शन फैक्टर किसको बोलेंगे रे आप सेक्शन फैक्टर? हम बहुत बार बोले कि चैनल सेक्शन वो है कि the cross section at a particular point, that is nothing but the channel section or the cross section of the channel, isn't it? So similarly a section factor of the channel, if you'll go into the technical things we can say, then mathematically it is nothing but a product of weighted area and square root of the hydraulic depth. And this is the product, that is Z is a product of weighted area A and a square root of a hydraulic depth D. इसी को हम सेक्शन फैक्टर Z बोलते हैं. ओके, इसका जो इन डिटेल यानी कि इसका क्या बोलते हैं उसका हम सिग्निफिकेंस वगैरह जो भी है, दैट वी आर गोइंग टू study in the next parts. Okay, right now I am just giving an idea what does it mean about and how it is to be. इसका जो भी बेसिक है यानी कि ये क्या डिफाइन करता है, सेक्शन फैक्टर है, बाद में सॉरी और एक आता है. Those things we are going to study in detail in the next classes. Okay, so right now I'm giving an just idea about what does it mean about technically, that is it is nothing but the product of weighted area and the square root of a hydraulic depth, isn't it? So that is equals to a into, यानी कि यदि हमने रेक्टेंगुलर चैनल ले लिया और ट्रेपेजॉइडल ले लो कोई बात नहीं है, तो a क्या d क्या होता है, d is nothing but the a by t, d is nothing but the a upon t, यानी कि weighted area a upon the top width t रहते हैं. अभी a को मैंने बाहर निकाला तो क्या रहेगा, a into a by t raised to 1 by 2 आएगा. ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू, अभी a into a, इसका पावर 1 यहाँ पे, इसका पावर 1 है, दोनों का पावर का एडिशन हो जाएगा, दैट इज a raised to 3 by 2 upon root t we can say. So this is an in general the section factor for the channels. यदि आपका रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन है तो वहां पे आपको एरिया a का जो भी एरिया है वो पुटअप करना पड़ेगा, और जो भी आपका टॉप विड्थ है t, वो आपको टॉप विड्थ वहां पे पुटअप करना पड़ेगा. लेकिन जब हम यूनिफॉर्म फ्लो के लिए कंसीडर करते हैं, okay, for the uniform flow computations we used to consider that this section factor Z is equals to a into r raised to 2/3, यानी कि for uniform flow conditions, especially for uniform flow conditions. ये derivation कैसे आता है, that we are going to study in the next lectures. Okay, but generally it is a into r raised to 2/3, and by using this thing we are going to solve the various numericals, allied numericals we can say, in the subsequent classes. So just now we have to keep into mind that after the, as this is a geometrical properties we are studying about, so that's why I have considered the section factor as one of them, which is nothing but product of weighted area and square root of the hydraulic depth, that is a capital D. Okay, but for a uniform flow computations we is to consider Z as a into r raised to 2/3. Okay, this is about the geometrical properties of channels we can say. Now after this, the another thing which we are going to discuss over here, that is the governing non-dimensional number. Governing in the sense जो भी कैनल का फ्लो रहता है, that flow is due to the gravity. So by considering that a dominating force as a gravity, the non-dimensional number which used to be related to that we are going to discuss, and we are knowing that non-dimensional number which is to govern the flow conditions in canals or the channels, that is nothing but the Proud number. Okay, so the next heading will go for as a Proud number. and कि Proud number क्या होता है, उसका
इक्वेशन क्या है रिलेटेड टू द कैनल्स विल गो फॉर Froude number. Okay, it is denoted by a letter capital F suffix R. Froude's number. F has to be capital because it is the name of a scientist, we can say. So Froude number यानी कि non-dimensional number जो भी है, all the non-dimensional numbers are the ratios. वो ratios है किसके? Various forces के हैं. अभी यहाँ पे जो ratio आता है Froude number का, it is the ratio of a square root. ये ratio है, लेकिन किसका है? Ratios of the forces, but those are in a root. वो कौन से हैं? Inertia force to the gravity force. यानी कि Fi, it is inertia force to the gravity force, that is F suffix G I am writing over here. So inertia force or inertia we can say divided by a gravity force in the root is nothing but the Froude's number. यानी कि जो भी ratios रहते हैं, those all the ratios are related to the ratios of the forces of the various forces acting, we can say, and with respect to that we is to define them. So Froude number is one of that, which is nothing but the ratio of inertia to the gravity. यहाँ पे हम Froude number ही क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि Froude number में जो फोर्स है that is a gravity, and in the canals जो भी flow होता है canals में, that flow is due to the gravity. So as a predominating force is a gravitational force, that's why we are considering over here as a Froude's number. Now यदि हम यहाँ पे देखेंगे यानी कि अभी inertia force का मैग्नीट्यूड क्या रहता है? So मान लो कि some certain volume is flowing through a canal or a channel, we can say. Certain volume यानी कि मान लो कि आपका channel section है ऐसा, या आपका flow का depth है, ओके, और इसमें से जो डिस्चार्ज पास हो रहा है वो Q है. अभी इसका जो एरिया रहेगा, वेटेड एरिया, ओके, इनटू यदि हमने उसका विड्थ को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा. नहीं तो डिस्चार्ज को यदि हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वॉल्यूम अब मिलेगा जो यहाँ पे ऑक्यूपाई हुआ है. So inertia force, firstly I will go for what does it mean about. So inertia force is nothing but the density area into rho a v square. Might be you have studied about the, कुछ समझ में आता है क्या कुछ? Inertia force, that is a mass into acceleration. I will go in the basics firstly. Inertia force is nothing but the mass into acceleration, isn't it? F is equals to ma. Yes, sir. Okay, F is equals to m into a. न्यूटन का जो लॉ है कौन सा है? सेकंड है या फर्स्ट है या थर्ड है? Second law. So from the second law we are moving ahead. We are taking the help of this law of inertia, we can say, that is a F is equals to ma, mass into acceleration. यहाँ पे मास कितना रहेगा in terms of the density? अभी डेंसिटी हमें मालूम है. डेंसिटी क्या रहती है रे? डेंसिटी इज इक्वल्स टू Mass upon volume. मास बाय वॉल्यूम. मास बाय वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम क्या आएगा यहाँ पे? सॉरी, मास क्या रहेगा? Density into volume. डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो डेंसिटी एज रो इनटू वॉल्यूम. ओके, ये हो गया हमारा मास के लिए. मैंने कहां से लिया देख लो, यहां से ले लिया. एज डेंसिटी इज अ मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू. अभी एक्सेलरेशन यानी कि क्या रहता है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम रहता है, सही ना? Yes, sir. तो एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे खाली टर्म्स में रीअरेंज कर दूंगा. आई एम जस्ट रीअरेंजिंग द टर्म्स एंड नथिंग एल्स देन दैट. ओके, सो नेक्स्ट अटेम्प्ट आई विल डू इट इज अ डेंसिटी इनटू अ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. जो टाइम था वो वेलोसिटी के नीचे था, मैंने वॉल्यूम के नीचे ले लिया, इनटू द वेलोसिटी. अभी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यानी कि क्या होता है रे? Discharge. That is nothing but the discharge, we can say, isn't it? So that will be equals to discharge. So density into q into velocity, we can say. Again discharge q यानी कि हमें मालूम है वो क्या रहता है? q is equals to area into velocity, isn't it? बराबर ना? हाँ सर. Okay, Hmm. now put up that thing. So what you will get?
density into Q as a area into velocity as a V into this velocity as a V. So what will be the magnitude for the inertia force here? बोलो क्या आएगा? Rho a v square. UA V square. Rho a V square. So this is our inertia force for the a certain volume of water which is flowing through a channel section. वो कौन सा भी channel section होने दो. Okay. So रेक्टेंगुलर है तो उसका एरिया बी इंटू वाई रहेगा. ट्रेपेजोइडल है तो जो भी हमारा है उसकी तरफ से रहेगा. ट्रायंगुलर है उसका जो भी एरिया रहेगा वो एरिया आएगा. डेंसिटी जो भी फ्लो है उसमें पास हो रहा है उसका डेंसिटी आएगा और जो भी वेलोसिटी है उसके हिसाब से हमें इनर्शिया फोर्स यहाँ पे मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज इक्वेशन 1 वी कैन से. नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज एफ जी वी कैन से. अभी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आएगा रे? ये तो डेफिनेशन न्यूटन ने क्या बोला था, दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स. बट ma डिफाइंस द इनर्शिया, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है उसको मोशन में लाने के लिए हमें जो फोर्स लगाना पड़ता है दैट फोर्स मस्ट बी मोर देन दिस m into a. यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स रहता है, उसको हम इनर्शिया फोर्स बोलते हैं. वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कैसे क्या बोलेंगे रे? क्या आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन? EMG. राइट. यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा. सो आई वुड लाइक टू राइट हियर Fg is equals to mass into acceleration due to gravity. Okay, so that is nothing but the m into small g. अभी मास वी आर नोइंग, हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था, क्या था वो? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम था. सो आई वुड लाइक टू गो फॉर दैट. सो वो कितना रहेगा? डेंसिटी सॉरी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी आएगा ये. ओके, अंडरस्टूड. सो व्हाट विल बी देयर इन नाउ द वॉल्यूम. अभी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वो अर्थ का आएगा. वी आर नॉट गोइंग इन द डिटेल्स. सो क्या रहेगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इनटू द लेंथ और द विड्थ जो भी है. ओके, लेंथ और विड्थ जो भी है, a into l, this is nothing but the volume into the g I am considering over here. This has equation number 2 we can write. Then put up those two values in equation in our main equation of the friction force, sorry, Froude number, so that you will get an required entities we can say. So it implies, that is a Froude number implies inertia force, that is a rho into a into v square divided by gravitational force is a density into area into length into gravity, that is under root we can say. Now just cancel the terms, those are common herein. So क्या क्या cancel हो जाएगा रे? Rho and A. Rho and a will get cancels to each other. So what else remains? Froude's number is equals to under root V square by LG. v square by L into G. So this is the equation or the formulae for the Froude's number based on the forces involved in it, that is the inertia force and the gravitational force we can say. Okay, understood. और ये क्या करता है Froude नंबर? इट इज टू गवर्न द डायनामिक सिमिलरिटीज, यानी कि फोर्सेस की जो सिमिलरिटी रहती है, इट इज टू गवर्न द डायनामिक सिमिलरिटी ऑफ द फ्लो कंडीशंस. कहाँ पे? जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेटिंग फोर्स रहता है, सिग्निफिकेंट फोर्स रहता है, वहां पे हम Froude नंबर का यूज करते हैं. ओके, अंडरस्टूड अप टू दिस? Yes, sir. Now the next point of discussion is classification of the open channel flows.
Now till time we had seen the types of the canals, then we had seen its geometrical properties, then we had seen the governing non-dimensional number for the flow through the canals, that is Proud's number we had seen. After that we'll go for the classification of the open channel flow. So as I mentioned over here, this is nothing but the one of the type of a classification, that is a steady and unsteady. अभी पहला का जो फ्लो है, it is categorized into two parts, steady flow, unsteady flow. स्टेडी के नीचे जो आता है, दैट इज यूनिफॉर्म ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, रैपिडली वेरिड फ्लो एंड स्पेशली वेरिड फ्लो. एंड फॉर अनस्टेडी we have a gradually varied flow, rapidly varied flow and spatially varied flow. Okay, अभी first one we'll go for, that is a steady. यानी कि steady flow means what? यदि flow हमारा steady है तो हम उसको steady कब बोलते हैं? तो जो भी हमारी flow की characteristics रहती है, फ्लो की जो प्रॉपर्टीज रहती है, यानी कि फ्लो का डेप्थ रहेगा, उसका वेलोसिटी रहेगा, वो जो पैरामीटर्स है, वो सब पैरामीटर्स यदि along the time और सॉरी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, यानी कि एक ही सेक्शन पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम यदि वो कांस्टेंट है, नॉन चेंजेबल है, तो हम उसको स्टेडी फ्लो बोलते हैं. यानी कि dq, that is a discharge with respect to time, then depth of the flow with respect to time, and velocity with respect to the time. If they are non-changing, if it is a zero or a constant we can say, then in that case we can say that the discharge is a steady discharge or flow is a steady flow. ये कहाँ पे आता है? with respect to time at a section, यानी कि कोई भी सेक्शन आपने ले लिया चैनल्स के फ्लो के मिले, लेकिन मान लो कि आपका चैनल है, ऐसा बेस है उसका, बेड स्लोप है, और ये इसमें से जाने वाला फ्लो है. ओके, यदि आपने एक सेक्शन ले लिया, मान लो कि आपने सेक्शन 1-1 ले लिया, यदि सेक्शन 1-1 पे आपने डेप्थ जो है फ्लो का y, जो डिस्चार्ज है q, उसका जो वेलोसिटी है v, यदि आपने वो डिफरेंट टाइम को मेजर कर दिया, यदि वो चेंज नहीं हो रहा है, if it remains same for different times, then we can say that this passing discharge और जो भी flow है यहाँ पे, that flow is nothing but the steady flow. Okay, और उसके opposite end में, यानी कि other side we can say, if those parameters are changing with respect to time, then this is called as unsteady. अनस्टेडी में क्या हो जाएगा? जो भी मान लो कि अभी हमारा सेक्शन 2-2 है यहाँ पे, और यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन से है? वेलोसिटी है, देन फ्लो का डेप्थ है. ओके, वो क्या हो रहे हैं यहाँ पे सेक्शन 2 पे, क्या हो रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू द टाइम चेंज हो रहे हैं, वेलोसिटी बदल रही है उसकी, और जो फ्लो का डेप्थ है वो भी बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. if they are changing, then in that case it is called as a unsteady flow or unsteady flow flowing through that particular channel or a canal. The under the steady type we have a different ones. कौन सा है वो बाद में? यूनिफॉर्म फ्लो है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है, रैपिडली वेरिड फ्लो, स्पेशली वेरिड फ्लो है. अभी यूनिफॉर्म फ्लो कब बोलेंगे आप? किस फ्लो को हम यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे? तो जब हम एक आधा चैनल देखेंगे, मान लो कि आपके पास एक दूसरा वाला चैनल है, मान लो कि दिस इज एन चैनल, ओके, दिस इज द चैनल बेड स्लोप आई वांट टू कंसीडर, और कैनल बेड वी विल ट्रीट इट एज, एंड ए उसका फ्लो का डेप्थ है, दिस डेप्थ इज पैरेलल टू द कैनल बेड. ओके, दिस इज अ फ्लो डेप्थ. ओके, जो भी मान लो कि यहाँ पे आपका सेक्शन 1-1 है या ए सेक्शन है मान लो, और यहाँ पे आपका सेक्शन 2-2 नहीं तो सेक्शन बी भी है, ऐसा मान लो. जितना फ्लो का डेप्थ यहाँ पे है y1 और जो y2 है, दैट y1 इज इक्वल्स टू y2 है. बाद में जितना वेलोसिटी यहाँ पे है v1, उतना ही वेलोसिटी यहाँ पे है v2, यानी कि v1 इज इक्वल्स टू v2 है. कहाँ पे? जो हमारा A1 to B या नहीं तो A to B हमने कंसिडर किया है, वो जो रिक्वायर्ड लेंथ है उस लेंथ पे, यानी कि फॉर अ पर्टिकुलर चैनल लेंथ वी कैन से, और अलोंग द लेंथ if the flow characteristics such as the velocity and flow depth are not changing, then that is called as uniform. यानी कि यूनिफॉर्म यानी कि क्या? जो भी फ्लो का डेप्थ है, जो भी वेलोसिटी है,
वो 1 to 2 के बीच में कहीं पे भी हमने मेजर कर दिया तो हमको उतना ही मिलेगा। यानी कितना, जितना v1 है या जितना v2 है उसको हम y और v बोलेंगे। ओके, वो वेलोसिटी v उतना है और डेप्थ y उतना है, कहीं पे भी मेजर कर लो वो हमें उतना ही मिल रहा है, तब हम उसी फ्लो को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। अभी यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन में क्या रहता है, तो यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन में यदि ऐसा है यानी कि जितना डेप्थ यहाँ पे है उतना हर जगह पे है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, जो भी आपका कैनाल का बेड रहेगा, जो भी कैनाल बेड का जो स्लोप रहता है हमारा S0 उसको हम बोलते हैं। कैनाल का जो बेड स्लोप जो रहता है, ऐसा हमारा हॉरिजॉन्टली मान लो, ये आपका एंगल थीटा रहता है और इस स्लोप को हम S0 बोलते हैं। जितना कैनाल बेड का स्लोप रहेगा उतना ये हमारा वाटर सरफेस लाइन का स्लोप रहेगा। और यानी कि ये जो दोनों लाइंस है, कैनाल बेड का लाइन और ये हमारा वाटर सरफेस का लाइन, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, दे विल बी आइडेंटिकल, वी कैन से। इन दैट केस क्या रहेगा, जो फ्लो है हमारा वो फ्लो हमारा यूनिफॉर्म रहेगा। ऑन द अदर हैंड, ये दोज फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स और द प्रॉपर्टीज वी कैन से, वेलोसिटी एट सेक्शन 1 2 3 4 जो भी है, if they are not constant along the length, they are changing along the length, यानी कि dv velocity along the length or dy depth along the length are changing, they are non-constant, then in that case we can say that this flow is a unsteady। unsteady में क्या हो जाएगा, तो unsteady में, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में जो भी फ्लो का सरफेस है वो एक ही डेप्थ पे नहीं रहेगा, इसका डेप्थ हर पॉइंट पे चेंज होता जाएगा, और डेप्थ चेंज होता जाएगा तो क्या होगा, उसका जो वेलोसिटी है करस्पॉन्डिंग, वो करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी भी चेंज होता जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उसी को हम नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। ये हो गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, स्टेडी यूनिफॉर्म लिखा है। अब ये स्टेडी यूनिफॉर्म यानी कि क्या रहेगा, व्हाट डज इट मीन अबाउट द स्टेडी एंड यूनिफॉर्म, क्या रहेगा रे स्टेडी एंड यूनिफॉर्म में। स्टेडी में हमने क्या बोला था, विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम बोला था, एट अ सेक्शन बोला था। यूनिफॉर्म में हमने क्या बोला, अलोंग द लेंथ, यानी कि यहाँ पे बोला था वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इज अ कांस्टेंट, और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं यूनिफॉर्म में, वेलोसिटी अलोंग द लेंथ इज अ कांस्टेंट। It means that for a steady uniform flow we can say that if the flow characteristics are not changing at a section and not changing along the length, it means if they are constant throughout the length or any section we can say, then in that case we can say that the flow is a steady uniform। okay, और स्टेडी ये हो गया हमारा स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में। ओके, देन द नेक्स्ट वन जो हमारा रहता है, the next type of the flow we can say that we have written as a gradually varied flow। अभी gradually varied flow में क्या रहेगा, the depth of the varied flow, अभी varied है, okay, varied है यानी कि जो डेप्थ है फ्लो का वो चेंजिंग है, it is a changing, but if that depth of the flow, if that variation of the depth of the flow along the channel length is so small, जो वेरिएशन आ रहा है फ्लो के डेप्थ का, that is so small, in that case we can say that that flow is a gradually varied flow। ओके, यानी कि इसमें यदि हम A to B ले रहे हैं या 1 to 2 ले रहे हैं, तभी जो भी डेप्थ हमारे यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y2 रहेगा, y3 रहेगा, y4 रहेगा, तब उसका जो वेरिएशन है वो वेरिएशन यदि बहुत कम है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे, लॉन्ग डिस्टेंस तब हम उसको बोलेंगे ग्रेजुअली वैरिड फ्लो। अभी ग्रेजुअली वैरिड फ्लो का कैरेक्टरिस्टिक क्या रहता है, उसका जो कर्वेचर ऑफ स्ट्रीम लाइन जो रहता है, यानी कि जो भी फ्लो हो रहा है, जो भी उसके स्ट्रीम लाइंस रहेंगे ऐसे, उसका जो कर्वेचर रहता है, दैट कर्वेचर इज सो स्मॉल, यानी कि एक्सेसिव कर्वेचर नहीं रहता है, बहुत स्मॉल रहता है कर्वेचर। ओके, और जो जीवीएफ जो रहता है ग्रेजुअली वैरिड फ्लो, उसमें जो कर्वेचर यानी कि जो फ्लो के डेप्थ का वेरिएशन जो रहता है, स्मॉल वेरिएशन, दैट स्मॉल वेरिएशन इज गवर्न्ड बाय द फ्रिक्शनल कंडीशंस, यानी कि जो भी रेजिस्टेंस है किसने दिया हुआ, जो चैनल का बेड है जिसके ऊपर पानी बह रहा है,
वो जो सरफेस कंडीशन है यानी कि उस पे सैंड हो सकती है, छोटे छोटे पेबल्स हो सकते हैं, नहीं तो और स्मॉल स्टोन्स हो सकते हैं। ओके, उसकी वजह से क्या हो सकता है, यदि यहाँ पे ज्यादा फ्रिक्शन है तो वहां पे वेलोसिटी कम हो जाएगा और डेप्थ थोड़ा सा कम बढ़ता जाएगा। जहाँ पे फ्रिक्शन कम है वहां पे वेलोसिटी थोड़ा बढ़ेगा और डेप्थ थोड़ा सा कम हो जाएगा। Likewise, यानी कि the frictional force plays an important role in a GVF. Okay, so friction plays a important role in the GVF. और यहाँ पे और कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसकी, जो भी हमारे स्ट्रीमलाइंस है उनका जो कर्वेचर है, okay, that curvature or the bends of the streamlines, we can say those bends of the streamlines are so small, then we can say that the flow is a gradually varying flow. अभी आप बोलोगे कि उसको स्टेडी क्यों बोल रहे हैं, स्टेडी में तो बोला हमने कि फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट चेंजिंग एट अ सेक्शन, यानी कि लेकिन क्या होता है, जो वेरिएशन जो होता है वो वेरिएशन बहुत स्मॉल रहता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि स्टेडी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड if that variation of the depth or the velocity is so high over a so small length, that variation is so high over a so small length, then in that case we can say that that particular channel section, in that particular channel section the flow is a rapidly varying flow। यानी कि मान लो कि ऐसा आपका स्मॉल चैनल सेक्शन है ऐसा, ओके, और यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है ये ऐसा हो रहा है, दिस इज ओवर फ्लो डेप्थ, वी कैन से वाटर सरफेस है आपका, और ये क्या है, चैनल का बेड है, इसका जो डेप्थ है दैट डेप्थ इज चेंजिंग एट अ लार्जर अमाउंट ओवर अ सो स्मॉल लेंथ। मान लो कि सेक्शन 1 है आपका यहाँ पे और ये आपका सेक्शन 2 है। इट मीन्स हियर वी आर फाइंडिंग दैट द वेरिएशन इन द फ्लो डेप्थ इज सो हाई और लार्ज with respect to or along the length, then we can say that that flow is rapidly variable। कम लेंथ पे ही बहुत सारे undulations, बहुत सारे रिवर्स फ्लो जनरेट हो रहा है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, स्टार्ट नाउ। So in a rapidly variable flow, as we have discussed, the variation of the flow depth is so large over a so small length, then that flow is called as a rapidly varied flow। Okay, then GVF we have written here as a steady GVF and unsteady GVF। ओके, अभी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो समझ में आ गया, हमारे रैपिडली वेरिड फ्लो समझ में आ गया, लेकिन हमने कहाँ पे लिखा था उसको, स्टेडी के अंडर GVF लिखा था। अभी स्टेडी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो यानी कि क्या, द वेरिएशन ऑफ द फ्लो प्रॉपर्टीज एट अ सेक्शन shows a so small variation then a steady GVF, isn't it? और इसका जो एग्जांपल आता है वो हमने देखा था पिछले क्लास में, डिस्कस भी किया था। उसका एग्जांपल इज नथिंग बट द बैकिंग ऑफ वाटर इन अ रिवर, यानी कि जब भी हम रिवर के ऊपर बांध डालते हैं, डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तब उसके बैक साइड में जो भी वाटर स्टोर होता है उसका जो वेरिएशन होता है डेप्थ का, दैट फ्लो वी कैन से दैट इज नथिंग बट द स्टेडी GVF। फिर एज अनस्टेडी GVF, अभी अनस्टेडी GVF यानी कि क्या, वेरिएशन तो है, isn't it? ग्रेजुअल वेरिएशन है लेकिन वो अनस्टेडी है, यानी कि वहां पे जो फ्लो प्रॉपर्टीज जो है, जो फ्लो प्रॉपर्टीज है वो सेक्शन पे जो उनका वेरिएशन रहता है, दैट वेरिएशन इज टू बी एग्जिस्ट, यानी कि जो भी वेरिएशन यहाँ पे रहेगा उसका रैपिडली वेरिड फ्लो में, अनस्टेडी GVF में, तो अनस्टेडी GVF में वो जो फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलोंग द लेंथ भी चेंज होती जाएगी और अलोंग द और एट अ सेक्शन, वो दोनों जगह पे वो क्या रहेगा, उसका वेरिएशन होता रहेगा। सो दैट इज नथिंग बट द अनस्टेडी GVF वी कैन से। द एग्जांपल इज फ्लड वेव्स इन अ रिवर्स, यानी कि जब फ्लड आता है, बाढ़ आती है रिवर को, तब जो पानी बहता है रिवर में, उसका जो टॉप सरफेस जो बहता रहता है, that is nothing but the example of unsteady GVF। okay, then for the RVF rapidly varied flow, यानी कि स्मॉल लेंथ पे उसका जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा रहता है। ओके, सो इसका जो एग्जांपल है वो हाइड्रोलिक जंप जो हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में, यानी कि जब भी हमारा वाटरफॉल रहता है तो वाटरफॉल में क्या रहता है, पानी बहुत ऊंचे से आता है और नीचे गिरता जाता है ऐसा, और गिरने के बाद वो ऐसा ऊपर आता है, रिवर्स रोल हो जाता है ऐसा,
और रिवर्स रोल होते होते क्या होता है, उसका डेप्थ बढ़ता है और बड़ा हुआ डेप्थ से वो आगे निकल के जाता है। लेकिन बाद में ऐसा हमारा जो पानी है, वाटर सरफेस जो है, वो वाटर सरफेस वो एक्वायर्स अ मैक्सिमम हाइट एंड इट इज टू फ्लो। यानी कि यहाँ पे जो हमारा रिवर्स फ्लो जनरेट होता है उसको हम ईडीज बोलते हैं। ये जो फॉर्मेशन है इसको हम रैपिडली फ्लड फ्लो बोलते हैं। बहुत स्मॉल लेंथ रहता है और अ शॉर्टर लेंथ, द वेरिएशन इन द डेप्थ इज सो लार्ज, दैट इज द रैपिडली फ्लड फ्लो। अभी रैपिडली फ्लड फ्लो में स्टेडी फ्लो किसको बोलेंगे? स्टेडी में हमने लिखा है कि रैपिडली फ्लड फ्लो है, तो स्टेडी फ्लो में रैपिडली फ्लड फ्लो यानी कि क्या, जो फ्लो है यहाँ पे रैपिड वेरिएशन हो रहा है डेप्थ का, लेकिन यदि आप यहाँ पे एक सेक्शन ले लेते हैं, मान लो कि हमने यहाँ पे एक सेक्शन ले लिया, ओके, सो सपोज दैट दिस इज अ रेड कलर वन इज वन ऑफ द सेक्शन, ये सेक्शन 1 है और यहाँ पे दूसरा सेक्शन है सेक्शन 2 वी कैन से। सो यहाँ पे यदि वेरिएशन है उसका अलोंग द लेंथ, बहुत सारा वेरिएशन है, लेकिन यदि उसी सेक्शन पे, एक सेक्शन पे जो डेप्थ है उसका वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं है और है तो वो छोटा सा है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? स्टेडी रैपिडली फ्लड फ्लो। यहाँ इस जगह पे देयर इज नो वेरिएशन बट अलोंग द लेंथ, यानी कि यहाँ पे जितना डेप्थ है उतना आपका यहाँ पे नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ का जो डेप्थ है वो कांस्टेंट रहेगा, नॉट चेंजिंग रहेगा, देन दिस इज अ स्टेडी आरवीएफ। और अनस्टेडी आरवीएफ में क्या होगा, उसका जो वेरिएशन है फ्लो का डेप्थ वो अलोंग लेंथ भी रहेगा और एट अ सेक्शन भी रहेगा, दोनों जगह पे रहेगा, दैट इज नथिंग बट द अनस्टेडी आरवीएफ। अभी स्टेडी आरवीएफ का हमने एग्जांपल देखा, स्टेडी आरवीएफ में क्या रहता था हमारा, वो हाइड्रोलिक जंप था, इट्स एग्जांपल वाज हाइड्रोलिक जंप, ओके। और रैपिडली फ्लड फ्लो का जो एग्जांपल है दैट इज नथिंग बट द बोर ट्रैवलिंग ऑफ द रिवर्स। आपने देखा है क्या, रिवर में जो पानी बहता रहता है उसमें बहुत बार ऐसा एक बोर रहता है, ऐसा उसको क्या बोलते हैं हम, ऐसा रहता है, वो बहुत सारे डेप्थ तक रहता है और इट यूज्ड टू मूव आइदर अप, Whirlpool. राइट, वर्लपूल। that whirlpool is nothing but the example of a unsteady RVF, यानी कि उसका जो डेप्थ रहता है वो सेक्शन पे भी बदलता रहता है और अलोंग द लेंथ भी बदलता रहता है और उसका वेरिएशन बहुत ज्यादा रहता है, उसको हम बोलते हैं अनस्टेडी आरवीएफ। अंडरस्टूड अबाउट दिस स्टेडी आरवीएफ, स्टेडी आरवीएफ एंड अनस्टेडी आरवीएफ। स्टेडी आरवीएफ में क्या हो रहा था, फ्लो का जो डेप्थ है, okay, mean depth of the flow we can say at the section is a constant, एक सेक्शन पे वो कांस्टेंट था लेकिन along the length वो बहुत वेरी हो रहा था, उसको स्टेडी रैपिडली फ्लड फ्लो बोलेंगे, ओके। और अनस्टेडी आरवीएफ जो है हमारा, अनस्टेडी आरवीएफ यानी कि रैपिडली फ्लड फ्लो जो है अनस्टेडी वाला, उसमें क्या है, सेक्शन पे भी यानी कि एक पॉइंट पे भी फ्लो का डेप्थ है वो बहुत सारा चेंज हो रहा है और अलोंग द लेंथ भी वो फ्लो का डेप्थ जो है वो बहुत सारा चेंज हो रहा है, तब हम उसको क्या बोल रहे हैं, तब हम उसको रैपिडली फ्लड फ्लो बोल रहे हैं। जो हाइड्रोलिक जंप है वो एग्जांपल है स्टेडी आरवीएफ का, और जो हमारा वर्लपूल है, वर्लपूल इज एग्जांपल ऑफ अ रैपिडली फ्लड फ्लो, इट इज अ फोर्स ट्रैवलिंग ऑफ द रिवर, दैट इज नथिंग बट द अनस्टेडी आरवीएफ। यदि उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो स्पेशली फ्लड फ्लो, एसवीएफ हम उसको बोलते हैं। ये स्पेशली फ्लड किसको बोलने का, कब बोलेंगे, तो जब फ्लड फ्लो रहेगा। अभी यहाँ पे जो फ्लो थे हमारे, ग्रेजुअली फ्लड फ्लो था, रैपिडली फ्लड फ्लो था, स्टेडी था, अनस्टेडी था, ये जो चीज थी वहां पे कहीं पे भी हमने डिस्चार्ज जो मैग्नीट्यूड है डिस्चार्ज का जो यहाँ से आ रहा था वो हमारा कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा था, जितना आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। इनलेट वाज इक्वल्स टू आउटलेट, और यदि वो वेरिएशन है वो बहुत कम रहता है, ताकि इवापोरेशन होके गया तो भी लॉस, इवापोरेशन सिपे से रहेगा तो बहुत कम रहता है, ऐसा हमने अज्यूम किया था, लेकिन नहीं कंटिन्यूटी अज्यूम किया था। लेकिन बहुत बार क्या होता है, जब फ्लो होता रहता है तब उसमें से कुछ डिस्चार्ज ऐड होता जाता है, नहीं तो डिस्चार्ज उसमें से कम होता जाता है। अभी डिस्चार्ज ऐड होता है और डिस्चार्ज कम होता है, यानी कि क्या होता है, जी मान लो कि बारिश हो रही है, कैनल से पानी फ्लो हो रहा है और उसमें और फ्लो होते वक्त बारिश हो रहा है, तो क्या हो जाएगा उसमें, वो
फ्लो का डेप्थ भी भारी हो जाएगा और डिस्चार्ज भी ऐड होता जाएगा, डिस्चार्ज ऐड होता जाएगा, दैट इज अ स्पेशली वैलिड फ्लो। और भी क्या हो जाता है, बहुत बार यानी कि बारिश नहीं हो रही है लेकिन क्या होता है, पानी जब झरने से बहता है, नहीं तो नदी या स्ट्रीम से बहता है, तब उसमें बहुत बार क्या होता है, वाटर इज टू सीप एंड परकोलेट और इनफिल्ट्रेट होता है, यानी कि वो जो सॉइल रहती है उस सॉइल में पानी नीचे जाता है, यानी कि उसमें क्या हो गया कि मान लो कि आपका ये ऐसा चैनल है, यहाँ पे ये आपका रिवर का बेड है, मान लो is a river bed and a discharge queue is passing through it, but some amount of the water is to get infiltrated into the soil। पानी क्या हो रहा है, मिट्टी में थोड़ा बहुत पानी कम जा रहा है, मान लो कि Q1 उतना है, और बाहर आते वक्त क्या रहेगा, मान लो कि आपका जो लॉस हो रहा है वो लॉस जो है वो QL है, यानी कि लॉस इन द सेंस इट इज गोइंग डीप percolated in the soil। so आउटपुट जो रहेगा आपका Q2 we can say that will be equals to Q1 minus QL उतना रहेगा, isn't it? So this is nothing but the spatial variation। और दूसरा जो एग्जांपल मैंने लिया था वो क्या था कि फ्लो हो रहा है, discharge is passing in the river but there is a heavy rainfall, there is a heavy rainfall। so rainfall की वजह से क्या हो रहा है, the water is going to add in the whatever the discharge is passing here, so Q plus Q in I would like to write here in, ये Q आने वाला है यानी कि सेक्शन 1 पे है, और उसमें Q in यानी कि एडिशनल है, किससे, वो बारिश की वजह से आ रहा है, और जब आउटलेट में जाएगा आप तो Q2 जो रहेगा आपका दैट इज Q plus Q in उतना आएगा। इट मींस देयर इज अ addition or a subtraction in the flowing flow due to the natural or artificial conditions we can say, then that is considered as a spatially varied flow। Understood what does it mean? The varied flow is a spatially varied, कब होगा, जब इसमें some flow is getting added or abstracted or subtracted we can say from this flowing fluid, then or flowing flow we can say, then that flow is called as a spatially varied flow। आएगा कुछ समझ में, समजलं का बाबा मी काय म्हटलं ते? Yes, sir. ओके अभी इसमें दो टाइप रहते हैं, कौन से स्टेडी स्पेशली वैलिड फ्लो है और अनस्टेडी स्पेशली वैलिड फ्लो है। अभी स्टेडी स्पेशली वैलिड फ्लो में क्या रहेगा, द डिस्चार्ज बीइंग अ कांस्टेंट एट or a discharge being a steady at a particular point but it is to change or it is to varies along the length। okay यानी कि क्या है, स्टेडी है यानी कि एक सेक्शन पे कांस्टेंट है, अभी मान लो कि आपका ए सेक्शन वहां पे है, दिस इज अ सेक्शन 1 वी कैन से, यहाँ पे जितना आ रहा था उतना ही है, इट इज नॉट चेंजिंग एट ऑल, कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ता है, ओके जैसे ही आगे बढ़ता है अलोंग द लेंथ वी कैन से देयर इज अ वेरिएशन, देयर इज अ लॉस। सिमिलरली यहाँ पे जितना आ रहा है उतना ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेगा ओवर द लेंथ there is addition due to the rainfall and we will have a maximum discharge and that of the initial discharge here। so that type of the discharge is called as a steady spatially varied flow, and it is steady at a section or we can say the discharge being a steady but it varies along the length, then that is called as a steady spatially varied flow। okay on the other hand unsteady spatially varied flow, अभी unsteady में क्या रहेगा, it is changing at a section also and along the length also। in this the flow depth changes with respect to the time at a section also and along the length also। यानी कि क्या हो रहा है, अभी जो बारिश जो यहाँ पे जो हो रहा था अभी वो इस साइड में भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा, तो क्या होगा, यहाँ पे सेक्शन पे भी क्या होगा, जो डिस्चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा और आगे जाके और भी पानी इसमें ऐड होने वाला है, जो ऊपर से बारिश की वजह से इसमें ऐड हो रहा है उसकी वजह से, यानी कि एट अ सेक्शन एंड अलोंग द लेंथ द डिस्चार्ज इज अ चेंजिंग, दैट इज नथिंग बट द our unsteady spatially varied flow। understood about the steady spatially varied flow and unsteady spatially varied flow? समझ में आया, अरे आया कि नहीं? No, sir. Please explain once again. ओके स्पेशली वैलिड फ्लो क्या रहता है,
कि जब फ्लो पास होता है, रिवर हो या स्ट्रीम हो या कैनाल हो, उसमें से वो यदि पास हो रहा है तब उसमें कुछ पानी ऐड होता है, नहीं तो उससे पानी कुछ बाहर निकल के जाता है, ऐसा हम मानेंगे। तब उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशली फ्लड फ्लो बोलते हैं। यानी कि क्या है, मान लो कि ये आपका कैनाल का बेड है, कैनाल है, नहीं तो मान लो कि रिवर है, जो भी है, और जो वाटर इसमें फ्लो हो रहा है उसका जो टॉप सरफेस है, यानी कि जो फ्लो का डेप्थ है, मान लो कि ये आपका फ्लो का डेप्थ है। ओके, यदि इसमें जो पानी आ रहा है यहाँ पे सेक्शन 1 पे, दिस इज अ क्यू, वॉल्यूम डिस्चार्ज जो आ रहा है वो क्यू है, और यहाँ पे मान लो कि सेक्शन 2 है हमारा। भी मैं पहले आपको स्पेशल फ्लड फ्लो बोलता हूँ। यदि जितना डिस्चार्ज अंदर आ रहा है सेक्शन 1 पे, यदि उससे डिफरेंट डिस्चार्ज बाहर जा रहा है, मान लो कि Q2 उतना बाहर जा रहा है और Q1 इतना आ रहा है, यानी कि Q1 and Q2 are different, it means that either Q1 is a greater than Q2 or a Q2 is a greater than Q1, whatever it may be happens, यानी कि if the Q1 is greater than Q2, यानी कि यहाँ का जो पानी का वॉल्यूम है, डिस्चार्ज है, दिस इज अ ग्रेटर देन Q2, यानी कि क्या हो रहा, लॉस हो रहा, देयर इज अ लॉस इन डिस्चार्ज। पानी क्या हो रहा है, जमीन में सीपेज हो रहा है, नहीं तो पर्कुलेट हो रहा है, इनफिल्ट्रेट हो रहा है, सॉइल में पानी जा रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, जो भी यहाँ पे लॉस होगा QL वी कैन से, ड्यू टू विच देयर विल नॉट बी एग्जैक्टली अ डिस्चार्ज एट द सेक्शन 2 एज लाइक एन डिस्चार्ज व्हिच वाज देयर एट अ सेक्शन 1। एक केस हो गई। दूसरे केस क्या है, मान लो कि वही चैनल का सेक्शन है आपका, वही कैनल है, ओके, और जो उसका फ्लो का जो टॉप सरफेस है, डेप्थ है, मान लो कि आपका ऐसा फ्लो का डेप्थ है। वंस अगेन विल कंसीडर एज अ सेक्शन 1 एंड अ सेक्शन 2। यहाँ पे मान लो कि जो डिस्चार्ज आ रहा है दैट इज अ Q1, और यहाँ से जो जा रहा है वो है Q2। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर यहाँ से बहुत सारे बादल आए हैं, मानसून का सीजन चल रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। तो जब बारिश हो जाएगी तो क्या होगा, जो पानी है बारिश का वो इसमें ऐड होता जाएगा, देयर विल बी एडिशन वी कैन से, क्यू एडिशन वी कैन से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस डिस्चार्ज Q2 वी कैन से, Q2 विल बी Q1 प्लस वट एवर द Q विच इज गेटिंग एडेड ड्यू टू दिस रेनफॉल। यानी कि इस दोनों चीजों में क्या हो रहा, जो डिस्चार्ज है दैट डिस्चार्ज इज अ वेरिंग, either the volume is getting added or the volume is getting subtracted from the system. If such type of the flow is to exist, then that flow is called as a spatially varied flow. This is the basic concept of the spatially varied flow. यदि एडिशन है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यहाँ से सब्सट्रैक्शन हो रहा है कि पानी निकल के जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेशली वैरिड फ्लो। अभी उसमें स्टेडी और अनस्टेडी है। अब स्टेडी और अनस्टेडी में क्या है, मान लो कि हमने एक सेक्शन 1 यहाँ पे ले लिया, सेक्शन 1 है हमारा, यहाँ पे जो डिस्चार्ज है दैट डिस्चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, इट्स नॉट चेंजिंग एट ऑल विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, इट इज कांस्टेंट, देन दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेडी स्पेशली वेरिड फ्लो। स्टेडी स्पेशली वेरिड फ्लो, अंडरस्टूड? व्हाट डज इट मीन अबाउट द स्पेशली वेरिड फ्लो? स्टेडी एसवीएफ, सेक्शन पे कांस्टेंट है, वेरी हो रहा है, एडिशन सब्सट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन यदि एक सेक्शन पे आप उसको नाप रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, दैट इज स्टेडी एसवीएफ। वैसे ही यहाँ पे जो आपका Q2 है दैट इज अ dQ2 विथ रिस्पेक्ट टू dt इज अ कांस्टेंट, नॉट चेंजिंग एट ऑल, देन दिस इज अ स्टेडी स्पेशली वेरिड फ्लो हो सकता है। और अनस्टेडी में क्या होता है, यहाँ पे बारिश हो रही है, तो बारिश होने की वजह से क्या होगा, बारिश कम ज्यादा होती रहेगी, ओके, बारिश कम ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो सेक्शन हमारा यहाँ पे है 2 वाला, यहाँ पे जो डिस्चार्ज है हमारा dQ2 with respect to the time t will change, means it will not be equals to 0, it is changing because बारिश कम आएगी तो डिस्चार्ज का वेरिएशन होगा ही होगा, लेकिन कम होगा। बारिश ज्यादा हो गई तो डिस्चार्ज बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो भी यहाँ पे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि यदि एट अ सेक्शन वी कैन से देयर इज अ वेरिएशन ऑफ द डिस्चार्ज, देन दिस इज अनस्टेडी। और स्पेशली वेरिड है, यानी कि इसमें डिस्चार्ज
ऐड हो रहा है सिस्टम में या नहीं तो कम हो रहा है, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, सेक्शन पे भी उसका मैग्नीट्यूड जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज हो जाता रहा है। उसको हम बोलते हैं अनस्टेडी एसवीएफ, अनस्टेडी स्पेशली वेरिड फ्लो। अंडरस्टूड? अभी इसका एग्जांपल में एग्जांपल होता है बारिश का। जब बाढ़ आती है, यानी कि जब बाढ़ आती है तब वो अनस्टेडी एसवीएफ होता है, यानी कि एक सेक्शन पे टॉप सरफेस की, मान लो कि भी चंद्रभागा रिवर में भीमा रिवर में बाढ़ आया तो क्या होगा, जो उसका फ्लो का डेप्थ रहेगा वो हमारा हर विलेज के और हर साइड पे उसका डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, बढ़ता बढ़ता जाएगा और बढ़ता जा रहा है, और सेक्शन पे भी उसका वैल्यू डेप्थ है जो बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन उसके साथ क्या होता है, जो बारिश हो रही है उसका भी पानी वो रिवर में ऐड होता जाता है वो डिस्चार्ज में, उसको हम बोलते हैं अनस्टेडी स्पेशली वेरिड फ्लो। इज इट क्लियर नाउ? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so this was the classification as per the steady, unsteady we can say, and under the steady and unsteady we had seen the various types of the flows. Now the next classification of the type we can say as per the limit of the Reynolds number, okay, or Froude number. अभी पहला हम देखेंगे as per the limit of the Reynolds number. अभी आपको मालूम होगा रेनॉल्ड्स नंबर के लिए पहले हम फ्रॉड नंबर देखेंगे, उसका हमें बाद में भी देखना है। क्लासिफिकेशन एज पर फ्रॉड्स नंबर और अ फ्रॉड नंबर वी कैन से। अभी फ्रॉड नंबर में क्या था, हमने देखा था इक्वेशन उसका, Fr इज इक्वल्स टू रूट ऑफ द वेलोसिटी अपॉन L इंटू जी, ऐसा ही था ना? Velocity square. Velocity square होता sir. वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन रूट एल जी ना, ऐसे था ना? Yes, sir. Yes, sir. नहीं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं V बाय रूट ऑफ L इंटू जी। इज इट करेक्ट नाउ? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अभी कि g तो कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81, इजंट इट? मान लो कि जो लेंथ है वो लेंथ और विड्थ जो है वो भी हमारा कांस्टेंट है, तो इस चीज में जो फ्रॉड नंबर का जो वेरिएशन रहेगा वो किसके साथ रहेगा रे? जो वेलोसिटी जो वेरिएशन जो रहेगा फ्रॉड नंबर का वो किसके साथ रहेगा, यदि L और G कांस्टेंट है तो? Velocity. Velocity. It means that Froude's number is directly proportional to the V if L and G are constant. So by considering the velocity, or as per the velocity we can say the Froude's number is to vary, and as per that we have the three types of the flow. First one as a critical. तो critical condition में क्या होता है, Froude number is exactly equals to 1. critical flow में जो Froude number जो हमारा रहता है that is exactly equals to 1. सेकेंड जो रहता है क्रिटिकल से कम फ्रॉड नंबर होने वाला, उसको हम बोलते हैं सब क्रिटिकल फ्लो, उसी को हम सब क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं। और इसमें क्या रहेगा, फ्रॉड नंबर इज अ लेस देन 1, और जो थर्ड वाला जो रहता है उसको हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो। अब सुपर क्रिटिकल में क्या रहेगा रे, वेलोसिटी कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? सुपर क्रिटिकल में वेलोसिटी जो रहेगा फ्लो का वो ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? ज्यादा रहेगा, और वहां पे फ्रॉड नंबर भी हमारा 1 से ज्यादा रहता है। ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फ्रॉड्स नंबर, एज द फ्रॉड्स नंबर इज अ मेन गवर्निंग non-dimensional number we can say. Again, as like any pipe through the flow through the pipes which was classified based on the Reynolds number. मालूम है कि नहीं रेनॉल्ड्स नंबर? अरे मालूम है कि नहीं है? Yes, sir. सो रेनॉल्ड्स नंबर के हिसाब से जो आपने पाइप्स के जो फ्लो डिसाइड किए थे वो वहां पे भी अपने क्लासिफिकेशन देखा था वहां पे एज पर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर। सो यहाँ पे भी एज पर द रेनॉल्ड्स नंबर वी कैन से एज पर
Reynolds number, RE only I would like to say. As per Reynolds number, the flow is classified as a laminar, turbulent, and transitional, as like an your pipe flow. So first one is a laminar, second one is a turbulent I would like to go for, and the third one is a transitional, that is in between we can say. So लैमिनार फ्लो के लिए जो रेनॉल्ड्स नंबर रहता है ओपन चैनल में, ओपन चैनल में that Reynolds number used to vary in between 500 to 600. Reynolds number used to vary between 500 to the 600. This is as per the experimentation. Then in case of the turbulent flow, the Reynolds number used to be greater than 2000. Reynolds number is greater than 2000, and for a transitional case, the Reynolds number is in between 500 to the 2000. यानी कि 500 से ज्यादा रहेगा और 2000 से वो कम रहेगा. दिस इज नथिंग बट द ट्रांजिशनल. टर्बुलेंट 2000 से ज्यादा आने वाला और लैमिनार में 500 to 600 रहता है. Okay, so this is the classification based on the Reynolds number we can say. Okay, so most of the times what happens, they used to ask an multiple choice question that is based on the Reynolds number and Reynolds number for open channel flow, because the laminar flow is there for the pipe flow also. Here we used to have a confusion. So to avoid that, please remember the magnitudes of the laminar condition, turbulent condition, and transitional condition. 500 to 600 for laminar, for transitional above 500 to the 2000, and for the turbulent we can say that is above the 2000. That is the here this is the all about the classifications of the open channel flows we can say. Okay, so what we'll do now, today we'll stop here and we'll start for the next session, next part in the next lecture. Okay.